It is very heartening to see that this R&D budget has been spread both to the public and the private sectors, because in many ways, the private sector has an advantage that it can attract the best talent. It is very nimble, and therefore, I think it is very important what has happened in this budget, that sufficient attention has been given to R&D, which is basically the foundation of indigenization. Hello friends, welcome back to Nation Talks, an initiative of Metamorphs. Metamorphs is a non-political, non-religious, non-profit organization which is contributing to the nation building in its own way. Today, we are going to talk about the national budget. On 1st February, Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman rolled out the national budget, and the national budget appears to be heading towards indigenization and modernization and development of the nation. I want to start with a quote of great Chanakya, and it goes like this. It's in Hindi कि एक शांति प्रिय राजा को भी एक विशाल सेना का निर्माण करना चाहिए ताकि उसके राष्ट्र पर आक्रमण करने की सोच से भी दुश्मन आतंकित हो जाए. This is an important quote. Notwithstanding the circumstances your nation is in, you need to have a strong armed force to do your activities properly. Today, we see that a fair chunk of our budget has gone to the defense forces. How this budget of defense forces is utilized, what are the main components of this budget, and how this budget is going to impact Great Indian Armed Forces in times to come. To talk about it, we have, ladies and gentlemen, with us Admiral Anil Kumar Chawla, a scholar soldier, a great writer, wonderful orator, and more importantly, a person who achieved anything and everything that a naval officer can achieve in his career. He is superannuated as the Flag Officer Commanding-in-Chief of Southern Naval Command, highly decorated, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Nausena Medal, Vishisht Seva Medal. He was the head of procurement for 3.5 years for the Indian Navy. Longest probably by any flag officer of the Indian Navy in the. He was the mastermind who created the vision document for the naval strategy and naval modernization plan. And in his time, all these activities of modernizing your great Indian Navy took place. There can be no one better than Admiral A.K. Chawla, PVSM, AVSM, NM, VSM, to talk to us about the defense budget. Welcome, Admiral Chawla, to the Metamorphs. Thank you, General Mathur. It's a pleasure to be here. Thank you very much. I think we'll go straight to the budget. I would want to ask you, my viewers would like to know, what are the main components of a defense budget? And very nutshell, very briefly, you explain how this money is utilized for what all purposes. So, the defense budget of a country is one of the most important components of its national budget. And it has various demands that are, it is given under various demands. For example, demand number 19 is the Ministry of Defense Civil, because there's a huge civil component also within the Ministry of Defense, जो शायद कई लोगों को पता ना हो. Demand number 20 is for the revenue expenditure.
एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमारे जो वेपन्स, शिप्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट जो भी होते हैं उनकी मेंटेनेंस में, पे एंड अलाउंसेस में, स्टोर्स में, इसमें खर्चा होता है. Demand number 21 is the capital outlay. Capital outlay is for getting new acquisitions and is possibly the most important part of the defense budget, because that is where modernization comes in. And of course, finally, there is demand number 22, which is comprising defense pensions, which is also an important component of the defense budget, because it ensures that the well-being of the veterans who have spent their lives looking after the country is looked after. So this is the kind of breakdown that is given for the defense budget. और इसमें जो डिफेंस बजट है, एट द बिगनिंग आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये हमको एक एक्सपेंडिचर नहीं समझना चाहिए. दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जैसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो एक्सपेंडिचर नहीं होता. दैट इज समथिंग फॉर द रेनी डे, कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे ब्रिगेडियर जैसे जनरल माथुर ने हमको पहले बताया कि डिफेंस फोर्सेस आर दी अम्ब्रेला, इट इज़ द ढाल, जो नेशन की ढाल होती है. अगर ढाल मजबूत होगी तो ढाल के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो वे ऑफ लाइफ लोगों का है, वो चलता रहेगा जैसे हमको इन ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशन हमको चाहिए. So that is why I would just like to bring this out at the beginning, that the defense budget is not an expenditure, it's an investment. And I'll amplify on this further as we go along. बिल्कुल, आपने एडमिरल चावला आपने बहुत सही बताया कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं. और अगर आप, मेरे हिसाब से, मेरा ये मानना है कि इस बार का जो बजट है ये पिछले साल के बजट के ऊपर एक बिल्ड ऑन है. और ये बजट, अगर आप दो शब्दों में मुझे चाहें कि मैं इसको बताऊं, ये इंडिजनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को टारगेट करते हुए रखा गया है. और जैसा कि आपने बताया कि एक जो डिफेंस बजट हुआ करता है, वो डिफेंस बजट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. और इसके जो परिणाम हैं वो आपको तो त्वरित रूप से फौरी तौर पर नजर नहीं आएंगे, इसके परिणाम आपको लंबे समय पर नजर आएंगे. लेकिन ये बजट एक हमारे इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के लिए एक पथ तैयार करता है. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि डिफेंस बजट का जो हार्ट, दिल होता है, वो कैपिटल एक्विजिशन होता है. तो क्या आपको लगता है कि आपको इस वर्ष कैपिटल 1,52,000 करोड़ दिया गया है, वो किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? इस साल का जो कैपिटल बजट है वो पिछले साल से करीबन 13% ज्यादा है. और जैसे आप लोगों ने शायद अखबार में पढ़ा होगा कि नौसेना को और इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा बढ़ावा नौसेना का मिला है, करीबन 43% का, और एयरफोर्स को भी थोड़ा बढ़ावा मिला है. जो आर्मी है उसकी एलोकेशन थोड़ी सी कम हुई है, 12%. तो ये जो एलोकेशन है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो जहाज़ होते हैं, जो नेवी के जहाज़ होते हैं, मैं आपको एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी कमीशन हो रहा है विक्रांत, उसका अगर मैं एग्जांपल दूं, उसकी डिज़ाइनिंग शुरू हुई थी लेट 1980s में. उसकी सैंक्शन दी थी सरकार ने 2000 में, और उसकी कंस्ट्रक्शन का काम 2005 में शुरू हुआ था. और अगले साल और इस साल मेरे ख्याल में वो कमीशन हो जाएगा. सो अगर आप देखें, और उसके बाद वो चलेगा करीबन 50 साल नौसेना में. तो अगर आप देखें कि ये पूरा सिलसिला जो है करीबन 70-75 साल का रहता है, और ये बाकी देशों में भी लागू है, सिर्फ इंडिया में लागू नहीं है. उनका शायद कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन थोड़ा सा कम हो, बट ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो जहाज हैं वो मॉडर्नाइज होते रहते हैं. सो जो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उसमें गैप दे दिया जाए और सही ढंग से कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो तो फिर कैपेबिलिटी में गैप्स आ जाते हैं. तो दैट इज़ वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको रेगुलरली मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेगुलरली मिलता रहेगा तो जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं, जो तोपें हैं, जो बंदूकें हैं, जो टैंक्स हैं, जो हवाई जहाज़ हैं, पनडुब्बियाँ हैं, बाकी इक्विपमेंट जो है जो इस्तेमाल होता है डिफेंस में,
कंट्री की डिफेंस के लिए, उसमें फिर टाइम टू टाइम मॉडर्नाइजेशन आती रहे, क्योंकि आप सबको मालूम है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है आजकल, और नई टेक्नोलॉजी इंडक्ट कम से कम 10 साल में एक बारी कम से कम करनी पड़ती है। और अगर ये सब हमें करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको मेंटेन करना है। और इसी के साथ जैसे आपने बताया कि आत्मनिर्भरता के अगर हम ऊपर हम जा रहे हैं, तो दिस विल बी एन इन्वेस्टमेंट। वंस अगेन आई कम बैक टू माय थीम कि जो आत्मनिर्भरता या इंडिजनाइजेशन है, अगर हम मॉडर्नाइजेशन को इसमें इन्वेस्ट करें, देन वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर ओन इंडस्ट्रीज, इन आवर ओन पीपल। एंड मैं अगेन एक एग्जांपल आपको विक्रांत का ही दूंगा कि विक्रांत जो मैंने पिछली इंटरव्यू में भी दिया था जब मैं सर्व कर रहा था, कि विक्रांत के कंस्ट्रक्शन में जो खर्चा हुआ है 80% खर्चा वो इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है। ये कैसे होता है? आप छोटी सी एग्जांपल अगर ले लें कि उसके ऊपर दिन में अगर 2000 लोग काम करते हैं अप्रोक्सीमेटली उस जहाज के ऊपर, वो 2000 लोग जो हैं लोकल इकोनॉमी को चलाते हैं, 2000 लोगों को रोजगारी मिलती है, उनके आप परिवारों को देखो तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है टी स्टॉल वाले के ऊपर, हॉस्टल वाले के ऊपर, सर्विसेज इंडस्ट्री के ऊपर। जो इक्विपमेंट जो बनता है जाता है जहाज में, वो मीडियम और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में बनता है। उससे आप अगर जो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इस इन्वेस्टमेंट का, वो कई गुना है। That is why the capital budget is very important, and I'm very happy that the Indian Navy, which has been receiving us, a slightly smaller share of the capital budget for many years, has seen this jump, and I'm sure this will, if sustained, ensure कि जो नेवी के जो assets हैं वो modernize हो जाएंगे। थैंक यू। आपने जैसा बताया बिल्कुल सही। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि यदि हम इस बजट को गौर से देखें तो एक और चीज हुई है इस बजट में कि इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट भी लगभग 30% बढ़ा है। तो क्या ये कोई इंडिकेशन है कि हम अपने इंडियन ओशन रीजन में या हम अपने अपने द्वीपों में, आइलैंड टेरिटरीज में, और क्या सरकार अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को अधिक तवज्जो दे रही है? क्योंकि जो डिफेंस का बजट होता है वो थ्रेट बेस्ड होता है, और जो थ्रेट एनालिसिस लग रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या आप इसमें इस प्रकार की कोई चीज देखते हैं कि हमें इंक्रीज्ड मैरीटाइम थ्रेट बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू सिक्योर आवर मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड आल्सो क्रिएट एबिलिटी टू बी एबल टू प्रोजेक्ट आवर naval power, our national power beyond the naval borders? ये अच्छा पॉइंट आपने बोला। एक्चुअली जो नेवल एक्विजिशन की स्ट्रेटजी है, that is not threat based, it is capability based, because it is our belief that threats can mutate, threats can change over time. तो कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो करंट थ्रेट्स को और फ्यूचर थ्रेट्स को भी मीट कर सके। So that is why when we plan and we prepare our induction plan, we prepare more on capability that we should have vis-a-vis what our major adversaries can field against us. तो ये this becomes a safer way of planning, because then आप सब फ्रंट कवर कर सकते हैं और स्पेसिफिक थ्रेट्स भी कवर हो जाती हैं उसमें। अगर हम अपना मैरीटाइम सिनेरियो देखें तो हाल ही में जो चीन की जो नौसेना की जो एक्सपेंशन है, ये अभी इसमें काफ़ी चर्चा चला है। उन्होंने यूएस नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको भी पार कर गए हैं। एंड ये यूएस ने एक्नॉलेज किया है अपने ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कि उनकी जो जो चाइनीज़ नेवी की स्ट्रेंथ है वो उनकी स्ट्रेंथ से अभी बढ़ गई है, और आगे होने वाले सालों में 450 जहाज उनका प्लान है बनाने का। दैट इज़ द एस्टिमेट। सो वन इज़ ऑफ कोर्स कि जो इंडिया है वो इस रीजन में जो है सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम पावर है, और हम जो हैं वी आर नॉट एग्रेसिव मैरीटाइम पावर और एग्रेसिव पावर, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेसी है। वी आर वेरी हैप्पी विद द स्टेटस को दैट वी हैव। We have got excellent relations with our maritime neighbors. So most of our neighbors depend on us for providing them support in times of crisis. So the Indian Navy is looked upon as a security provider and a preferred security partner by most nations in the Indian Ocean region, क्योंकि जो नौसेना होती है उसको मेंटेन करना और उसको चलाना वो महंगा काम है, और वो सारे छोटे मोटे देश जो हैं वो बेचारे नहीं कर पाते हैं। So the Indian Navy actually looks after the maritime security of most of our island neighbors and provides training and other assistance to them
whenever they require it, उनके demand के ऊपर. And they also know and trust India and the Indian Navy, because they know that we are not somebody who's coming here for any other purpose other than helping them. ये जो वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी philosophy है उसके अंतर्गत. And of course our Prime Minister has already enunciated the philosophy of Sagar, security and growth for all in the region, जो maritime interest की तरफ oriented है. So the other point I would like to mention is that हमको समझना है, because India is a great power and India has a great future, and we are one of the largest economies in the world. आगे जाके और 10-15 सालों में अगर हमारी विजन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की रियलाइज होती है, और अगर हम आगे जाके और बढ़ते हैं, जो होगा inevitably होगा, then we have to realize that no nation has become a great power if it did not have maritime power. This is a truism of history. So ये मेरे ख्याल में indicate करता है इस budget, and of course it needs to be sustained, because as I mentioned earlier, ये long term program है कि अगर हमको great power बनना है, हमको महान बनना है, then we have to be great at sea as well. And maritime power, of course, that is a large subject, but it does not only mean military power. Maritime power has got many facets, including the merchant shipping, including the exploitation of the blue economy in a sustainable manner, including the ability to project power, including the ability to help out our friends in need. So maritime power जो है, it has got many components. बिल्कुल आपने ठीक बताया एडमिरल चावला कि भारत की जो नौसैनिक शक्ति है वो भारत के इंडियन ओशन रीजन में रहने वाले देशों के लिए एक मैत्रीपूर्ण सद्भावपूर्ण भावना के साथ उस शक्ति का डेवलपमेंट हो रहा है, और उसकी स्ट्रेटजी उसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, और हमारा इक्विपिंग प्रोफाइल भी उसी प्रकार से होता है. ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी. मैं दर्शकों से चाहूंगा कि अगर आपको ये हमारा वीडियो ठीक अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. एडमिरल चावला, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि 2 डायरेक्ट प्रपोजल्स इस बजट से उभर के आ रहे हैं, और वो 2 प्रपोजल्स ये हैं कि जो बजट हमको 1,52,000 करोड़ कैपिटल अलॉट हुआ है, उसका 68%, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 10% ज्यादा है, 68% डोमेस्टिक मार्केट में हमें खर्च करना है. दूसरा, पहली बार भारतवर्ष के सैनिक इतिहास में पहली बार हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 25% जो बजट है वो प्राइवेट सेक्टर्स और स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए खोला है. तो इन 2 महत्वपूर्ण प्रपोजल्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जरूर. एक तो जो इंडिजिनाइजेशन है या आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी जो सरकार की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है. नौसेना ने ये पॉलिसी 1960 से शुरू की थी, क्योंकि हमने अपना पहला जो जहाज जो था वो 1961 में कमीशन किया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में. उसके बाद हमने अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ाया है, वॉरशिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को, और अभी करीबन सारे जहाज जो हैं वो इंडिया में बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी कमीशन होने वाला है, डाउन टू द स्मॉलेस्ट बोट. जो इंडिजिनाइजेशन बजट है उसका महत्व ये है कि इंडिजिनाइजेशन जो है वो एक दिन का काम नहीं है. इंडिजिनाइजेशन को समझना पड़े तो आप इस तरह से समझे, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इट स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, फ्रॉम केबल्स टू नट्स बोल्ट्स. वो भी स्पेशल टाइप के होते हैं, मतलब ये नहीं कि कोई भी नट बोल्ट वेपन या सेंसर सिस्टम में लगा दिए जाएं. और उसके बाद स्मॉल मोटर्स, स्मॉल प्रोपल्शन सिस्टम्स, और उसके साथ ही जैसे अगर जहाज है तो उसका स्टील, इंडिजिनस स्टील. तो कई चीज़ें होती हैं, कई इंडस्ट्रीज होती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. और जब तक ये इंडिजिनाइजेशन का जो इकोसिस्टम है, जो मैं बोलूँगा, वो इकोसिस्टम अगर हम बिल्ड नहीं करेंगे, विच इज़ मेनली कंप्राइजिंग ऑफ द MSMEs, SMEs and finally the PSUs and the private sector, जो बड़े हमारे एंटरप्राइजेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमें सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, उनमें सस्टेन्ड एक्सपेंडिचर करना है. इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि जो वेपन सिस्टम्स होते हैं वो टूथपेस्ट या टूथब्रश की तरह खरीदे वाले आइटम नहीं होते. उनकी जो परचेज होती है वो
एपिसोडिक होती है, जैसे मैं बोलूँ, दैट मीन्स यू बाई an item, then you run it for a certain number of years, then you buy that again after a certain number of years. तो अगर हम इंडिजिनाइजेशन करना चाहते हैं तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो बना रही है उनको सस्टेन करना पड़ेगा for the years until the next order comes, either through maintenance or through spares or whatever means. So इसीलिए जो बढ़ावा दिया गया है इंडिजिनाइजेशन बजट में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, and I'm sure that this will help build the ecosystem which has already been built up in the country much further. And then we will go on to advanced equipment and systems within the country. दूसरी बात जो आपने कही थी R&D की, now R&D is critical. R&D जैसे मैंने पहले बोला, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, दुश्मन की कैपेबिलिटी 10 साल में और बढ़ जाती है. So far as very advanced weapon systems are concerned, हम उनको इम्पोर्ट करते थे. हमने काफ़ी कुछ इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है DRDO और पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री के तहत. मगर इसको अगर हमने और बढ़ावा देना है तो R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जो नो वाई है, आई कॉल इट द नो वाई कंपोनेंट, मतलब अगर बंदूक जो है 7.62 मिलीमीटर है तो क्यों 7.62 मिलीमीटर है, 7.63 क्यों नहीं हो सकती? उसका अगर बैरल एक किस्म के मेटल का बना है तो वो उस टाइप का मेटल क्यों है, दूसरा टाइप का नहीं? तो अगर हम अभी तक जो क्या कर रहे थे कि हम सिर्फ नो हाउ ले रहे थे, मतलब कैसे करना है वो कर रहे थे, बट अगर हमको नो वाई लेना है तो इसके लिए हमको R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने पेटेंट बनाने पड़ेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी. और इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक वेपन सिस्टम या सेंसर या इक्विपमेंट अगर हमारी प्राइवेट या पब्लिक इंडस्ट्री बनाए तो उसका जो नेक्स्ट वेरिएशन है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ, उसको बनाने के लिए हमें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज we may be able to copy an imported weapon system, but अगर उसकी अगर नेक्स्ट जनरेशन बनानी है, नेक्स्ट एडवांस सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए हमको ये अंदर की जो टेक्नोलॉजी है जो R&D के थ्रू ही मिल सकती है, उसकी ज़रूरत है. And it is very heartening to see that this R&D budget has been spread both to the public and the private sectors, because in many ways the private sector has an advantage that it can attract the best talent. It is very nimble. And therefore, I think it is very important what has happened in this budget, that sufficient attention has been given to R&D, which is basically the foundation of indigenization. बिल्कुल आपने बहुत सही कहा और मैं भी इस बात को मानता हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनिशिएटिव जो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ये कुछ वर्ष पहले ये हमने शुरू किया था. इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगे. और इस बार जो 25% बजट हमने DRDO के बजट में से R&D प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा है, तो ये एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम है. इसके अलावा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी बनाएंगी जो कि सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए होगा. तो इस जो इंडिपेंडेंट एजेंसी का आप किस प्रकार से इसका प्रभाव इसके ऊपर देखते हैं? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप है, बिकॉज इंडिजिनाइजेशन अगर करनी है देन सर्टिफिकेशन जो है वो उसकी कैपेबिलिटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वालिटी एज ऑल्सो सेफ्टी. जैसे अगर पनडुब्बी है तो पनडुब्बी की जो सर्टिफिकेशन है डिज़ाइन की, अगर उसके लिए हमको बाहर जाना पड़े तो फिर हमको दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने प्लान शेयर करने पड़ते हैं. अगर हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ अपने पास हो, और हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है, इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री एंड वन ऑफ द 5 टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे, देन ये कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए. एंड व्हाइल वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डिंग अप दिस कैपेबिलिटी, आई एम श्योर कि ये जो प्रोविजन किया है बजट में, इससे इस कैपेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा. एंड देयरफॉर दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ इंडिजिनाइजेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम R&D to domestic manufacture to innovation, which includes certification of the quality as well as the safety of the equipment. All that will receive a fillip, which is very important, and not just for our own requirement, but also in the future giving an eye towards defense exports. आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सरल भाषा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराई.
रक्षा बजट क्या है, रक्षा बजट के हिस्से कंपोनेंट्स क्या हैं, रक्षा बजट को किस प्रकार से खर्च किया जाता है और उसका राष्ट्र की सुरक्षा में किस प्रकार से उसका लाभ मिलता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि असर्टिव और एग्रेसिव चीन हमारे पास है, जो कि हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और समुद्री सीमाओं को ताड़ रहा है। वी हैव मैलिशियस पाकिस्तान, जो कि किसी भी किस किस्म की खराबी देश में फैलाने में अपने आप को बहुत बड़ा बनाता है, और एक अनस्टेबल अफगानिस्तान। और ये सब चीजें मिलकर के भारत के सुरक्षा एनवायरनमेंट को बहुत डिफिकल्ट बनाती हैं कि इसको किस प्रकार से हैंडल करना है। और इसलिए आवश्यक है कि हमारे पास एक आधुनिक और बहुत कारगर सेनाएं हों। और ये जो बजट इस बार आया है, जैसा कि हमारे विशिष्ट अतिथि एडमिरल चावला ने आपको बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये बजट। पिछले वर्ष के बजट और पिछले कुछ वर्षों के बजट से को आगे बिल्डअप करता है। ये बजट हमारी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम करने के लिए की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको बता दूं 2016 से 2020 के बीच में 32% इंपोर्ट्स में गिरावट आई है, और इस बजट के मार्गदर्शन से, इस बजट के डायरेक्शन से हमारे को इसमें और सफलता मिलने की संभावना है। आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल, इंडिजनाइजेशन, ये दो चीजें इस बजट से साफ उभर के आ रही हैं। एडमिरल चावला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आए और हमारे दर्शकों से आपने बातचीत करी। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम के ऊपर आके, एंड आई एम श्योर दैट दिस विल इंश्योर दैट द व्यूअर्स आर एजुकेटेड ऑन द डिफेंस बजट। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। और दर्शकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। मेटामॉर्फ्स की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।